Okay. Sir, am I audible? Yes. Okay, sir. Lot of echo. Hello. Okay. A very warm good evening to everyone present over here. I'm Akanksha Maurya, nursing tutor, Divine Institute of Nursing and Paramedical Sciences, feeling very fortunate to be here with you all. It gives me immense pleasure to extend to you a very warm welcome in today's webinar on empowering parents and teachers for students' mental health well-being. This program is presented by uh, Freedom from Poverty Trust and Mansik Shakti under their Indo-Canadian initiative for our students. I would extend my floral welcome to Professor Amresh Srivastav, the speaker of the evening, and Dr. Shivendra Dwivedi, who have joined us virtually. We are delighted to have you here, sir. We look forward to the period you would be spending time with us and innovative thoughts that you would bring on to the table. We also like to welcome Dr. Hemant Dixit and Professor B.D. Mishra to this program who have joined us in the webinar. Now, I would like to welcome the dignitaries present over here. I request Professor Sen Begum, Principal Divine Institute of Nursing and Paramedical Sciences, to present floral bud to respected Dr. Pankaj Shrivastava, HOD Cardiac Surgery and Medical Director, Divine Heart and Multispeciality Hospital. Thank you, sir and ma'am. Now, I would like I would like to request Dr. Sanya Susan, Vice Principal, Divine Institute of Nursing and Paramedical Sciences, to present Flora Bird to respected Dr. C.M. Pandey, Director, Academic and Research, Divine Institute of Nursing and Paramedical Sciences. Thank you, sir and ma'am. Now, to begin this program, we are pleased to have Dr. Pankaj Shrivastava, HOD Cardiac Surgery and Medical Director of our institute, to welcome the guest and give us the opening remarks. So please. Thank you, Akanksha. Now, as a cardiac surgeon, I think I'm not very fit for this moment or this topic of mental health. But still, I welcome Dr. Professor Amrish Srivastav and Dr. Shivendra, who has taken out time to address our students and to interact with them on request of Dr. C.M. Pandey sir. So it is a pleasure and an honor to have you both on our panel. Thank you so much for being here. Thank you for having us. I also welcome Principal of Nursing College, Vice Principal, other tutors, Dr. C.M. Pandey, and the students. I think this program is for all the students who are present here because uh, tomorrow is Suicide Prevention Day, and it has been seen in India at least every hour one suicide is being done.
and most of the suicides are in the age group of 18 to 35. Around 35% of all suicides happen in this age group. So it is important that we concentrate on the mental health and well-being of the students who definitely fall into this age range. I think everybody would have heard about Kota, which Yeah. is a coaching hub of India, and every now and then we keep on hearing that somebody has committed suicide there. So it is number one is peer pressure, competition, and sometimes it happens that failed relationships, or you are not able to cope with your studies, or even like sometimes very trivial matter. Nowadays we hear that mother has scolded the child and she committed suicide. Mm. So probably that we have to look into this mental health program not from the adult side but from the very beginning, from the childhood. We have to see why the children are committing suicide at so young age on very trivial matters. So it is important that, like previously at our age group and all that, I think teachers used to beat us. दो थप्पड़ इधर से लगाए, दो थप्पड़ उधर से लगाए, किसी का ईगो हर्ट नहीं होता था. आज डांट भी देते हैं तो सबका ईगो हर्ट हो जाता है. Yeah. मेरे पिताजी ने हमको सड़क पे मारा था, तब भी कुछ नहीं हुआ, अभी तक हैं हम. और आजकल के बच्चों को डांट भी दो कि आपको पबजी नहीं खेलना है, तो भी लोग सुसाइड कर लेते हैं. तो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव टू बी मेंटली वेरी स्ट्रांग. फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं होती है. If you are mentally strong, you can compete, you can do anything in this world. Nowadays, physical strength doesn't mean anything. If you have knowledge, if you have good mental health, you can succeed anywhere. So, request to all the students that हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं जूजू नहीं बनना है, छोटी छोटी बातों से नाराज नहीं होना है, छोटी छोटी बातों में सेंसिटिव नहीं हो जाना है, क्योंकि पॉजिटिविटी, योर पॉजिटिव एटीट्यूड कैन ब्रिंग लॉट ऑफ चेंज. नॉट ओनली दैट, you are going to help others as well. You are in this profession where you are going to help others. So अगर आप कमजोर होंगे मेंटली तो फिर आप लोगों की हेल्प कैसे करेंगे? सो आई थिंक यू ऑल हैव टू वर्क हार्ड. फेल हो जाना, पास हो जाना, कभी नंबर कम हो जाना, कभी ज़्यादा हो जाना, इस चीज़ से दुनिया में कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है. Today, nowadays, I don't think Dr. CM Pandey or me, anybody asks me, how many marks did you have in 12th standard? How many marks did you have in MBBS? Nobody asks. कोई नहीं पूछता आप फेल हुए थे कि पास हुए थे. Yeah. नहीं पूछता है. क्योंकि ये सब चीज़ें बड़ी इररिलेवेंट है. जब आप आगे लाइफ में बढ़ते हो तो ये मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है. योर नॉलेज हैज़ द वैल्यू. आज छोटे छोटे बच्चे ऐप बना लेते हैं. तो दिस इज ऑल नॉलेज. आपकी किताबी पढ़ाई से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है. सो आपको नॉलेज गेन करना है, आपको किताबों से नॉलेज गेन करना है, रट के और एग्जाम पास नहीं करना है. यू हैव टू डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड सी दैट इफ यू आर गोइंग टू डील विद योर पेशेंट्स, आप सभी को पेशेंट्स को डील करना होगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी मेंटल वेलबींग कैसी है. व्हाट वी सी एज ए कार्डियक सर्जन, आई कैन से कि हम लोग जब देखते हैं कि पेशेंट बड़ा पॉजिटिव है, उसका फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है, तो पेशेंट डज वेरी वेल. उसकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है. अगर उसका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, वो डर रहा है, फैमिली सपोर्ट नहीं अच्छा है, तो उसका रिकवरी डिलेड होता है या फिर प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं. आई थिंक एवरीबडी नोज दैट आप अगर खुश हैं तो आपके डब्ल्यू बढ़ जाते हैं, आपके प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है. और Yeah. आप अगर डिप्रेस हैं तो फिर आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है. तो आई थिंक विद दिस नोट कि आप सभी लोग पॉजिटिव रहें, ओपन माइंडेड रहें और बहुत सेंसिटिव ना हो. कीप एन ओपन माइंड एंड बी पॉजिटिव. थैंक यू सो मच. Thank you so much, sir, for your kind words. Now, I would like to invite Dr. Shivendra Divedi, distinguished anesthesiologist at Montreal and chairman of Freedom from Poverty Trust,
to introduce the speaker of this webinar and invite him to lighten us. So please. Thank you so much for this great honor, and it's really a huge honor and privilege for me to introduce to you Professor Amrit Srivastava. He did his MD in psychiatry from Mumbai University, has an FRCP in psychiatry from the UK, and FRCPC from Canada. If I were to list his academic and professional achievements, it would be here for another half hour or more. So that's not what I'm going to do. I just want to point out is a 5-volume set on suicide, a global perspective, which is an amazing work. Rather, I would like to tell you how we met, and which speaks to his big heart. As the president of another organization called Canada India Global Forum, I was asked by His Excellency Ajay Bisaria to do some work to help Indian students during the pandemic. We had a huge incidence of depression and suicide. It was so bad that we were sending 2 to 4 bodies of dead students to India every month. In that context, I contacted 30, 40 different psychiatrists from one, because myself being an anesthesiologist, I don't have any experience in this. And no one came forward to volunteer to help me in this task until I finally got in contact with Professor Srivastavaji through a mutual friend. And his words were, how can I help? And we were able to arrange 5 webinars for the students here to help them out. We are all very, very fortunate to have such an eminent speaker and an internationally renowned and respected psychiatrist among us today. Without further ado, Professor Srivastava, please. Namaskar. Respected Dr. Pandey and Professor Dr. Srivastava, the director of the institute, faculty members in the Divine Heart Institute and Nursing Institution, my dear students, friends and colleagues. ये मौका भी है, दस्तूर भी है कि हम आदाब कहें और आपको कल की शुभकामनाओं के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और अंतर्राष्ट्रीय सुसाइड प्रिवेंशन ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके ये प्रथा शुरू की है पिछले 15 सालों से कि वर्ष में एक दिन संकल्प का दिन हो, जिस दिन हम न केवल उन्हें याद करें जो किसी मजबूरी में हमें छोड़कर चले गए, बल्कि हम इस बात का संकल्प लें कि हमसे क्या कुछ छूटता जा रहा है जो हम इन लोगों को नहीं दे पा रहे। आखिर बात क्या है कि 13,000 से ज्यादा बच्चे अपनी 17वीं वर्षगांठ के पहले हमसे जुदा होने के लिए मजबूर हो जाते। आखिर परिवर्तन की आवश्यकता है तो कहां है? समाज बदल रहा है, परिवार बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, बहुत कुछ बदल रहा है। क्या बदलते हुए समाज में, बदलती हुई धारा में हमारे बच्चे, हमारे आज के नौजवान अपने आप को ढालने में सक्षम नहीं पा रहे हैं? कई सवाल खड़े होते हैं जब आप इन विषयों पर गहन चिंतन करना चाहते हैं। मैं इस विषय की शुरुआत उन सभी को याद करते हुए करना चाहता हूं जो अपनी जिंदगी से जूझ रहे हैं। वे विद्यार्थी जो गांव से, गलियों से निकलकर सुविधाओं के न होते हुए भी
कोई डॉक्टरी की पढ़ाई में, कोई इंजीनियरिंग के कंपटीशन में, कोई आईएएस के लिए, कोई पीसीएस के लिए, कहीं कहीं से पैसे, कहीं कहीं से किताबें, कहीं कहीं से वे शक्ति इकट्ठा करते हैं और जूझ रहे हैं। आप जानते हैं हमारे देश की हालत ऐसी है जहां रोजगार की समस्या और कल और भविष्य के कौन से सपने सरकारों ने आपके सामने रखे हैं और उनकी क्या सच्चाइयां हैं, क्या ये आपके मानस पटल पर कोई चिन्ह नहीं अंकित करते? क्या ये संभव है कि 16-17 साल का छात्र अखबार न पढ़ता हो कि करोड़ों लोग परीक्षाओं में बैठते हैं और सालों साल उन्हें उसके नतीजे भी नहीं मिलते? क्या उनके सपने सामाजिक परिवेश से निकले हुए नहीं हैं? और अगर ऐसा सब कुछ है तो ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ उनके लिए क्या कर सकते हैं? यह एक ज्वलंत प्रश्न हमारे सामने खड़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि आज के दिन हर घर में, हर परिवार में, हर महफिल में, हर यार दोस्तों की महफिल में इस बात पर चर्चा हो कि यार तू दुखी है तो क्यों है, आखिर ये माजरा क्या है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। देख, हम तथ्यों पर बातें करेंगे, हम विश्व के रिसर्च डेटा पर नहीं जाते हैं। हम भारतवर्ष में जो कुछ बहुत रिसर्च होती है, हमारे यहाँ के लोग बड़े बड़े जुझारू भी हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, जो कुछ उनके पास है। मैं आपको बताऊं, एक बार मेरे कॉलीग हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, वो डॉक्टर शुक्ला, मैं बहुत पुरानी बात है, मैंने उनसे, तो उनके पेपर्स जो हैं वो ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकियाट्री में उन दिनों छपते थे। एंड ही वाज सिंगल मैन डिपार्टमेंट, नो अदर साइकियाट्रिस्ट इन द मेडिकल कॉलेज, ही अलोन। आई वाज अ यंग स्टूडेंट, आई आस्क्ड हिम, सर कैसे करते हो आप? You are doing this research and which gets published in British Journal of Psychiatry, which is such a illustrious journal. क्या करते हो आप? क्या है आपके पास? तो उन्होंने कहा मेरे पास 2 हाथ हैं, 2 आंख है, मैं इसी से करता हूं जो करता हूं। मेरा, आप लोग इसी प्रोफेशन में हैं, नर्सिंग के एग्जाम, मेरी शुभकामनाएं हैं आप सब लोग पास हों और अपने अपने क्षेत्र में जाएं, काम करें, मरीजों से मिलेंगे, उनके रिश्तेदारों से मिलेंगे और जीवन दुखी लोगों से मिलने में ही गुजर जाएगा। और आपसे ज्यादा अच्छा कौन जान सकता है कि दुख में सुख कैसे ढूंढना है? आपके पास 50 पेशेंट का वार्ड होगा, 30 पेशेंट का वार्ड होगा, उसमें 4 नर्सेज होंगी या दिन में 3 नर्सेज होंगी, कहीं ट्रॉमा में ड्यूटी होगी, कहीं कम्युनिटी में होगी, कहीं फैमिली प्लानिंग में होगी, कहीं लेबर में होगी। हर वक्त आप दुखों का सामना करेंगे, देखेंगे और अपने आप को खुश रखने की बातें सीखेंगे। सिर्फ इतनी सी बात है जो इन 2 लाइनों में मैंने कहा। जमाना ऐसा है जब समस्याओं से छुटकारा नहीं है। हमें ये मान लेना है कि हम अपने आसपास बहती हुई धारा में हैं और हमें ये ढूंढना है कि हर शख्स अपनी खुशी और अपने मस्तिष्क का संतुलन कैसे बनाए रखे। हम अगर समस्याओं को छोड़ दें, हम मानते हैं कि लोगों में एम्बिशन है, बच्चे कुछ बनना चाहते हैं, कोई गलत बात नहीं है, वे कंपीट करना चाहते हैं, उन्हें पीयर प्रेशर है, उन्हें पेरेंटल प्रेशर है, उन्हें एकेडमिया का प्रेशर है, उनकी पढ़ाई बहुत कठिन है, उन्हें समय नहीं मिलता। हम हर चीज मान लेते हैं, वी रिस्पेक्ट इट। फिर भी सवाल उठता है कि हम कर क्या सकते हैं?
तो मैं दो तीन इसमें 3-4 बातें आपसे साझा करना चाहता हूं, जो मेरे हिसाब से, मेरे विचार से बहुत आवश्यक है और पेरेंट्स को भी, छात्रों को भी, अध्यापकों को भी, सभी को जानना चाहिए। पहला, यह मानते हैं कि हमारे यहाँ निर्णय की क्षमता सिर्फ छात्र को नहीं है, छात्र और उनके माता पिता साथ मिलकर निर्णय लेते हैं कि लड़का आगे चल के क्या पढ़ेगा। चलिए यहां तक बात हम मान लेते हैं। फिर भी क्या आप बता सकते हैं कि कितने माता पिता ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिवली, न्यायिक रूप से अपने बच्चों का सही सही मनोवैज्ञानिक आकलन करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में सिर्फ ये आ जाता है कि मेरे बच्चे को ये बनना चाहिए? कितने ही लोग ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं कि 10 साल के बाद फाइनेंस की फील्ड का क्या होगा, इसलिए मेरे बच्चे को इस दिशा में जाना चाहिए? कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया, इसलिए आज मैं अपने बच्चों को कुछ दे सकता हूं, इसलिए उन्हें ये होना चाहिए? बड़ी गजब की बात है, आपके गले से उतरती है, बहुत मुश्किल है, ये सही नहीं है। इसका कोई, इसकी कोई आधारशिला हो ही नहीं सकती इन विचारों की। ये मिथ्या है, ये अपने आप को भुलावे में डालकर समस्याओं को आमंत्रण करने का पक्का फार्मूला है। यदि माता पिता और घर के लोगों ने अपने बच्चों का सही सही आकलन करना, मनोवैज्ञानिक आकलन करना नहीं सीखा, तो समस्याएं उन्हें नहीं छोड़ी। ये एक पहली बात मैं कहना चाहता हूं। ये विषय गहन है, हाउ टू डू मेंटल हेल्थ असेसमेंट ऑफ ए कैंडिडेट, व्हाट शुड ही स्टडी, व्हाट शुड ही नॉट स्टडी। बोथ द फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, वी मस्ट, स्पेशली ये विशेषकर जब हम ऐसे क्षेत्र में हैं शिक्षा के जहां वन वे एंट्री, देयर इज नो यू टर्न। आप एमबीबीएस में चले जाइए, मान लीजिए आप 1 साल के बाद सोचते हैं मैं सितार बड़ा अच्छा बजाता हूं, या मैं गजलें बड़ी अच्छी लिखता हूं, फिर तो फंस गए आप। आपको तो डॉक्टर बनना ही बनना है ना, आपकी तो रोटी नहीं चलेगी, आपके घर वालों की इज्जत बिक जाएगी, आपके जो सपने संजोए गए हैं वो सब खाक हो जाए। ऐसी ट्यूबुलर सिस्टम ऑफ एजुकेशन हमारी है जिसमें छात्रों पर दबाव आना बहुत स्वाभाविक है। इसलिए जो कॉलेजेस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें क्या कर सकते हैं, वहां क्या होना चाहिए? मैंने देखा अभी नई शिक्षा नीति आई है और उसमें मैं देख रहा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस बेंगलोर के डॉक्टरों ने पेपर्स लिखे हैं कि उसमें क्या है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या है। उसमें दो अच्छी बातें हैं कि काउंसलर्स की सुविधा जरूरी की गई है, मगर मैं आपको बताऊं इतने बड़े देश में जहां 200-250 यूनिवर्सिटी और जाने कितने कॉलेजेस हैं, हमारे यहाँ करीब 4 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, काउंसलर पढ़ाने के कोर्सेज कितने इंस्टीट्यूट आप जानते हैं जहां काउंसलर्स का प्रोडक्शन होगा? कोई कार्यक्रम नहीं। मैं दरखास्त करना चाहता हूं डॉक्टर पांडे और डॉक्टर श्रीवास्तव जो इस डिवाइन हार्ट इंस्टीट्यूट के, कि हम लोगों ने जो कोर्सेज बनाए हैं, शॉर्ट कोर्सेज, मीडियम कोर्सेज, उन्हें देखें और अगर उन्हें अच्छा लगे तो उसके बारे में आगे सोचें। खैर ये एक विषय से अलग विषयांतर की बात हो गई। तो हमारे यहाँ अभाव हमेशा रहेगा
अभाव में हमें कुछ ना कुछ निकालना है। यह एक चुनौती है कॉलेज के इंस्टीट्यूशंस के। सबसे जरूरी है संवाद का। अगर विद्यालय और वहां के अध्यापक ये कॉन्फिडेंस देने में सक्षम नहीं होते कि उनका स्टूडेंट किसी भी क्राइसिस में उन तक आ सके, और अगर उनके बात करने की शैली ऐसी नहीं है जिसमें छात्रों को अपनापन दिखे, तो उनके बात करने होने न होने से कोई फर्क छात्रों के जीवन को नहीं पड़ेगा। दुर्भाग्य की बात है कि इस तरफ सारी ट्रेनिंग होती टीचर्स की। पहली बात तो हमारे यहाँ टीचर्स मिलने बहुत, भारतवर्ष में मेडिकल टीचर, इंजीनियरिंग टीचर, टीचर्स मिलना बहुत कठिन हो गया है। और मैं व्यक्तिगत रूप से चाहूंगा कि बहुत से लोग शिक्षा के क्षेत्र में आए और आगे बढ़े, लेकिन इंस्टीट्यूशंस को ये देखना चाहिए कि जिन छात्रों को वो एडमिशन देते हैं वो हैं कौन, who are the candidates who are getting admitted in institutions. So here is the thing. About 10% of them develop problem of addiction. About 12 to 15% of them develop problem of depression. Another 5 to 7% develop severe mental disorders. About 35 to 36% students have replied in more than half a dozen studies that they feel severe psychological stress. About 10% of them live with potentially serious suicidal ideas in their head at any given time. Therefore, one out of every two student, हर दो में से एक छात्र ऐसा है जो मानसिक स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए तत्पर है, उसे उसकी आवश्यकता है, वो स्वस्थ नहीं है। अब इसके बाद देखिए कि कितने लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम, जितने लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम, every physical illness is a vulnerability for mental health issue. Then फिर आप देखिए ऐसे कितने परिवार हैं जो अपना घर, अपनी बचाए हुए पैसे चाहे साहूकार के पास या बैंकों के पास रख के पैसे लेके आपको इंतजाम करके बोलते हैं बेटा जाके डॉक्टर बन जाओ। आप क्या समझते हैं, क्या बच्चा कॉलेज में क्या जब वो रात को सोता होगा और सुबह उठता होगा तो ये नहीं सोचता होगा कि उसके पिता खाना खाते होंगे कि ब्याज देते होंगे? इस बोझ का कोई हिसाब है या नहीं है? और क्या ये बोझ अपनी आहुति नहीं ले जाता है? आप समझते हैं? अगर आप ये समझते हैं तो आप गलत समझते हैं। आप कभी उन लोगों से बात करें जिन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया। मैं गर्व से कहता हूं कि मुझे उन सभी परिवारों को धन्यवाद देना है जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे ये मौका मिला कि मैं ऐसे लोगों का इलाज करूं, उनसे बातचीत करूं। मैं ऐसे स्टूडेंट से मिलता रहा हूं, उनके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। And I can tell you from my first person account that family burden is the heaviest burden on students of middle social economic group. One study published in Indian Journal of Psychiatry asked one question after treatment कि ऐसा क्या किया जा सकता था जिससे आप आत्महत्या का प्रयास ना करते। तो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेड मेरा परिवार अगर बात करता तो मैं ये ना करता। अब देखिए संवाद जब बिगड़ता है दोनों तनाव में। एक छोटी सी कहानी है, राम और श्याम स्कूल जाते थे
बचपन में दोनों बिछड़ गए, अकेले हो गए और दोनों के परिवार भी अकेले हो गए। मैं ये क्यों कह रहा हूं? सुसाइड के बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए एक तरीका पाया गया है पीयर सपोर्ट। पीयर सपोर्ट पे हर साल 1,500 पब्लिकेशन है, पबमेड में आप चेक करें। Every year 1,500 papers are being published on peer support, and we know that out of all the research, hardly about 10 to 15% get published. So that means at least about a lakh of people are concerned कि ये peer support यानी माजरा क्या है, peer support क्या है, यारी दोस्ती क्या है, उसका नाम है अंग्रेजी में peer support। जिन दोस्तों ने दोस्तों का हाथ छोड़ दिया है, माता पिता ने बच्चों को अकेला छोड़ दिया है, स्कूल के टीचर कहते हैं ये समस्या मेरी समस्या नहीं है, और सामने पहाड़ जैसा परीक्षाओं और किताबों का जंजाल खड़ा रहता है, और हम समझते हैं कि इनमें वो मानसिक शक्ति है, हम चाहते हैं मानसिक शक्ति आए, मगर उसके लिए कुछ करना होगा। विषय बहुत बड़ा है, मैं सोचता हूं कि यहाँ पर मैं अपने बातों को विराम दूंगा, और अगर कोई प्रश्न होगा तो मैं जरूर उसका उत्तर दूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for enlightening us with this knowledge and making us aware of the mental health. Now it's time for the participants to resolve their queries. Sir, you're not audible. Sir, you're not audible to us. सर आई गेस हम लोग भी नहीं ऑडिबल है उन्हें। So are there any questions or queries? No? Okay. Sir, am I audible? Yes, you Yes. are. Yep. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Now it's time for participants to resolve their queries. So I request Professor Senbegum, Principal, Divine Institute of Nursing and Paramedical Sciences, ma'am, please come forward and give us a quick comment. Okay. Thank you so much, sir, Dr. Amresh Srivastav, sir, for giving a wonderful session related to mental health. And you have told many examples because this is a period where many of the students are they are taking many things as a negatively. It is not they are not taking a positive thing, mainly because of this peer pressure and family and comparing with other students, and because of a relationship problem and financial issues and family issues. Because of that they could not able to maintain a normal mental health. But your speech was what to say, it is eye opening for our students, and thank you for contributing
this session. And on behalf of Divine Institute, uh, we are thanking you for spending time with us and encouraging the students by adding a good points and how they can maintain a mentally how they can be healthy. Thank you so much, and I request students to ask or clarify any of your doubts. Please come forward. Thank you so much, sir. Any of the students, if you are having any query, you can come on the podium. Yeah, you can. Good evening, sir. Good evening. Sir, my friend, she want to pursue MBBS as a career, but she is having so much financial issue. Mm-hmm. So she is having so much financial issue, and she is suffering from a lot of things. Sir, as a friend, I support her. मैं उससे बहुत सारी तब उसको support करती हूँ बहुत ज़्यादा, और उसको मतलब cope up करने की कोशिश करती हूँ, but वो I know कि वो सब चीज़ें उसके लिए मतलब वो उतना नहीं cope up कर पाती है इन सब चीज़ों से. तो ये सब चीज़ें उसके लिए बेनिफिशियल इतनी नहीं है. उसको जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसको चाहिए वो मैं जो उसको सपोर्ट कर रही हूँ उससे नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसकी जो फैमिली सपोर्ट है वो उतना नहीं मिल रहा है उसको. सर, एज अ फ्रेंड मुझे और उसके लिए क्या करना चाहिए? आई थिंक आपका सवाल बहुत अच्छा है, और ये बहुत लोगों का यही सवाल होता है, जिसमें एक दोस्त दूसरे की मदद करना चाहता है, मगर उसे ये नहीं मालूम पड़ता कि मेरा जितना भी सपोर्ट है वो कम है, ज्यादा है, सफिशिएंट है, जिस तरह से चाहिए वो है या नहीं है. तो आपने अपने आप कहा है कि इसमें whether she will feel supported or not, you do not know. So let me highlight, कैंपस में दोस्ती एक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, और दोस्तों को आज के बदले हुए परिवेश में सबसे जरूरी है इस बात की सूचना होना कि मेंटल हेल्थ क्या है, वो बिगड़ता क्या है और बनता क्या है. जब हम मेंटल हेल्थ क्या है कि I say information about mental health should be present on first page of curriculum textbooks in every class. उसके अलावा, जैसे कि हम जानते हैं हमारी आंखों का काम है देखना, इसी तरह हम ये भी जानते हैं कि हमें याददाश्त कैसी है, हमारी भावनाएं कैसी हैं, हमारी समझ कैसी है, हम चीजों को जान कैसे लेते हैं. ये है आपके मानसिक स्वास्थ्य की परिचय. अब अगर इसके बारे में चर्चा नहीं होगी और हम जानेंगे नहीं कि भावनाएं क्या है, मन क्या है, ये अपने शरीर में उपस्थित कहाँ है, बनता कैसे है, बिगड़ता कैसे है, वे कौन सी दवाएं हैं जिससे मन खराब हो जाता है, वे कौन सी दवाएं हैं जिनसे मन ठीक हो जाता है, क्या मन की बीमारी भी हो जाती है, क्या विचारों की भी बीमारी हो जाती है, क्या शक की बीमारी हो जाती है, क्या शुभे की बीमारी हो जाती है, क्या लोगों की याददाश्त खो सकती है. तो ये जो सवाल हैं, इनके उत्तर उन 10 पन्नों में होते हैं जिसे हम कहते हैं authentic information about mental health, which must be given to each and every student. We are not doing it. We are not able to convince curriculum makers to do that. And every institute conducts 1 or 2 lectures here and there. And we hope that the students will come to know, but we don't know from where and how. No mechanism exists in our society. कहीं कहीं न्यूज़पेपर में छप जाएगा कि डिप्रेशन क्या है, उदासी क्या होती है, मगर उससे काम बनता नहीं है. दैट इज फार टू लिटिल. जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे, तब तक हम
ये प्लान या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं कर पाएंगे कि हम किसी की मदद कैसे करें। जैसे अगर किसी भी स्टूडेंट की फैमिली उसे सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों है। क्या परिवार में कोई मानसिक रूप से बीमार है? क्या दोनों के रिश्तों का कोई पिछला इतिहास है? कोई गलत फहमी है जिसे ठीक करने की आवश्यकता है? क्योंकि बगैर कारण के तो कुछ नहीं होगा, और जब तक आप कारण का इलाज नहीं करेंगे तब तक आप वहां पहुंचेंगे नहीं जहां आप जाना चाहते हैं। संक्षेप में मैं ये कह सकता हूं कि यदि आप संवाद बनाए रखेंगे, दोस्ती बनाए रखेंगे और बार बार पूछेंगे, और इस तरह से पूछेंगे कि उसे विश्वास हो कि आप उसकी भलाई में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको एक बार, दो बार, चार बार पूछने के बाद ये बात अवश्य मालूम पड़ेगी कि घर में संबंध क्यों खराब हो। जहां ये बात मालूम पड़ जाएगी वहीं आपकी विजय सुनिश्चित हो जाती है। तो मेरा कहना यह है कि सभी दोस्तों को अपने दोस्तों से संवाद बनाए रखना चाहिए, संवाद को इम्प्रूव करना चाहिए, उसकी गुणात्मकता बढ़ानी चाहिए, किसी को भी अजनबी नहीं समझना चाहिए। और ये जो कल्चर है, डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमिलिएशन, अब्यूज, डिरेलिंग, ये नेगेटिविटी जो गलत चीजें कैंपस में है, ये जानी चाहिए। ये डायरेक्टली all these things are number one precipitating factor for suicide attempt. Is that clear? Is there any other question? Yes, sir. Any other questions, students? Okay, you can pass on the mic. गुड इवनिंग सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सर जैसे हम नर्सिंग कर रहे हैं, इस समय स्टूडेंट हैं, तो हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं हर चीज़ का कि मतलब हमारी बेटी पढ़ रही है तो थोड़ा पढ़े, अच्छे से लाए, नंबर अच्छा पास करे, टॉप करे। तो सर ये सब का भी प्रेशर हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा आता है इस चीज़ का। तो सर इसको सर कैसे ओवरकम किया जाए, या फिर इसका कोई एडवाइस सर कि कैसे इसको मैनेज किया जाए लाइफ में? बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड। देखिए, कौन कितना प्रेशर डालता है या डाल सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है। ये तो ऐसा है ना कि आपको फोन आ जाएगा किसी को कि किडनैप कर लिया या कोई कुछ दे जाओ या धमकी दे दिया, तो अब उसके आगे कोई प्रेशर क्या होगा, वो भी आदमी को झेलना पड़ता। बट टू बी रियलिस्टिक, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी प्रेशर सहने की सीमा क्या है। I must know what is the level of tolerance of my stress. जिन लोगों को, जिन बच्चों को ये मालूम हो जाता है कि बस इससे ज्यादा मैं नहीं ले सकता, और वो उसमें विश्वास करने लगते हैं और अपने आप को बचाकर रखने के लिए प्रयत्न करने लगते हैं, उनकी विजय होती है। समस्या वहां आती है जब आप भी यही मान के चलते हैं कि कोई कितना भी प्रेशर डाले आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक रहेंगे। फिर वो एक दिन क्यूमुलेटिव प्रेशर में यू डेवलप मोर डिफिकल्टीज। फर्स्ट यू डेवलप फिजिकल सिम्टम्स लाइक प्रॉब्लम इन स्लीप, एपिटाइट, मेंटेनिंग alertness during the day, remaining focused, concentration, etc. After that, you develop symptoms of mood, behavior, irritability, anger, and so many other things. And so your inability to recognize yourself, अपने आप को ना जानना एक बहुत बड़ा गुनाह है। हम जानते हैं कि हमारी 5 उंगलियां कौन सी, कितनी बड़ी, छोटी, मोटी। हम ये भी जानते हैं कि एक उंगली से आप क्या उठा सकते हैं, क्या नहीं उठा सकते। तो फिर हम अपने मस्तिष्क के जो कार्यक्रम हैं, उनकी क्षमताओं को क्यों नहीं जानते, उसका प्रयास क्यों नहीं करते। हमें ये जानना चाहिए
कि हम में से कौन है जो अकेले नहीं रह सकता, जिसे हमेशा किसी न किसी की जरूरत है। हम में से कौन है जो अकेले पढ़ नहीं सकता, जिसे डर लगता है। हम में से वो कौन है जिसे अपने स्वाभिमान में, अपने अपने आत्मबल में कमी लगती है, और अगर ऐसा है तो वो कैसे बढ़ाएं हम। इन तरीकों के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, और सबसे अच्छा तरीका है आप जितना पढ़ेंगे साहित्य, लिटरेचर, अपनी संस्कृति की बातें जितनी पढ़ेंगे, जितना उन उदाहरण से सीखेंगे, उतना आपके लिए गुणकारी होगा। आप हमारे कल्चर में वी हैव अ वेरी रिच कल्चर विद वास्ट नॉलेज। किसी भी समाज में भगवत गीता जैसी किताब नहीं जो हमारे पास है। साइकोलॉजी की इससे अच्छी टेक्स्ट बुक हो ही नहीं सकती, मगर सैद्धांतिक रूप से इसकी उपेक्षा की गई, जो बड़े दुख की बात है। जो बहुत कम ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इस विषय पर लिखते हैं, पढ़ते हैं, बात कर, अब होने लगा है। वी फ्रीक्वेंटली सी दिस कॉन्टेक्स्ट। जब as a psychiatrist, when I use principles of Bhagavad Gita, principles of Gautam Buddha to solve problems of my patients, I also say that same principles are to be taught to everyone to solve problems of themselves. So nowadays, if I say कि आजकल मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ का रोल क्या है, तो ये रोल बदल गया है। हम सिर्फ बीमार लोगों के डॉक्टर नहीं हैं। हमारे घर में कई कमरे हैं, सिर्फ एक कमरे में वे लोग हैं जो बहुत बीमार हैं, दूसरे कमरे में उनके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जिनसे हम बात करते हैं और उनकी समस्याओं को देखते हैं। मगर बाकी कमरों में वे सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल ठीक है, मगर उन्हें उनकी क्षमताएं नहीं मालूम। वो ये नहीं जानते कि उनकी बुद्धि कितनी प्रखर है, वो ये नहीं जानते कि उनमें थोड़ी सी सहायता से वे क्या चमत्कार कर सकते हैं। So they are not aware about hidden psychological worth that they possess, and it is our job to make them aware, and that is what we do. We call it positive mental health. और उसमें हम बताते हैं कि you can be a very good football player, but if you are afraid of brushing people because of your past memories which are traumatic, you will never be in the field. आप खेल नहीं सकेंगे। मगर जब इस डर का इलाज हो जाएगा, इस डर के बारे में चर्चा हो जाएगी और भय निकल जाएगा, तब आप बिल्कुल अलग होंगे, तब आप विजेता होंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य की जब हम बातें करते हैं, तब हम उन क्षेत्रों की बातें करते हैं कि आपकी प्रभावशीलता कैसे बढ़ाई जाए, आपकी गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए, आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, आपका रिलेशनशिप कैसे सुधारा जाए, आपको ऐसा व्यक्ति कैसे बनाएं जिससे कि आप दो लोगों की समस्याओं को सुलझा सकें। How do I make you an arbitrator? How do I make you a counselor? How do I make you an investigator? These are the soft side of mental health expertise which we deal with, and we want many people to adapt the approach. और इसमें सबसे अच्छी बातें हमको मिलेंगी। I personally have written for students the book Science of Success, और उसका हिंदी में रूपांतरण है कामयाबियां। उसमें ये सारी बातें लिखी गई हैं। Principles, 5 principles of Bhagavad Gita which are good for students. Principles of Gautam Buddha for respecting the line of moderation, and yogic sciences practices, which includes physical health, exercise, nutrition.
These are the prescriptions for good health and good mental health and developing positivity. Positivity is character of a brain. See, आप अगर देखेंगे, say things like neuroproteins like BDNF or neuroglin or substance P, और आप देखिए जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग पॉजिटिव तरीके से अपनी समस्याएं सुलझाते हैं, और जो डिप्रेशन में है, इन तीनों ग्रुप में जब आप ये देखेंगे तो ये वैल्यूज अलग अलग पाई जाती है। आप जितना पॉजिटिव सोच सकते हैं उतनी ही आपके मस्तिष्क की न्यूरोट्रांसमिशन, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्रियाएं अधिक अच्छी होती है। तो ये जो बातें हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये नॉन साइंटिफिक है या इसका कोई एविडेंस नहीं है। We have evidence of most of the things that we have been talking, we have been listening for 5,000 years. And now we can very convincingly say that yes, hope and optimism, जो हमें ये सिखाया गया है, उसका एक न्यूरोबायोलॉजिकल एविडेंस है। हम ये कह सकते हैं कि मस्तिष्क में कौन से परिवर्तन होंगे जब आप नाउम्मीदी से उम्मीद की तरफ जाएंगे, या जब आपको बातचीत से कोई आपकी नाउम्मीदी हटा देगा, तब आपके मस्तिष्क में रासायनिक क्रियाओं में परिवर्तन होगा और उन परिवर्तनों को आप नाप सकेंगे। You will be able to measure and quantify those substances and relate that yes, these are the things which work. तो मेरा ये सुझाव है, और कि ये दिन प्रार्थना से शुरू होना चाहिए। अपने आप के स्वास्थ्य के लिए 1 घंटा देना चाहिए और 15 मिनट अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। थोड़े पढ़ने की आदत बहुत जरूरी है, चाहे किसी की जीवनी पढ़ें या आप पोएट्री पढ़ें या जो भी आपको अच्छा लगे पढ़ें, मगर पढ़ने से the brain gets charged. The cognitive worth comes to the brain by reading. Right. So if you stop reading, you must be sure that you are going to develop one or the other kind of forgetfulness when you become person of my age. So please don't do that. Continue habit to read your newspaper, your books. So these are certain lifestyle changes. These are the changes that we have to make in our life. जो सवाल पूछा गया था कि बच्चे अपना तनाव कैसे, ये तरीके हैं, और उन्हें बच्चों को अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। They will have to bother about their own mental health कि नहीं, ये मेरा जीवन है, मुझे जानना है मैं कितना बोझ उठा सकता हूँ, कितना नहीं उठा सकता हूँ, क्योंकि उसी के साथ उन्हें जीना है। और हर शख्स अलग अलग तरीके से बना हुआ है, सभी की जेनेटिक मेकअप अलग है, सभी के चाइल्डहुड डेवलपमेंट अलग रहा है। मैं उस विषय में जाने का समय नहीं है कि मेंटल हेल्थ इज डीप रूटेड इन मदरहुड। तो कभी मौका मिलेगा तो उस बारे में चर्चा होगी, लेकिन संक्षेप में कहें तो अपने जीवन को सुधारें, अपने आप को जानें और अपनी सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को जितना हो सके उतना प्रखर बनाएं। थैंक यू सर। Anyone else? Good evening, sir. Good evening. Good evening. Sir, I am a student of nursing first semester. I want to ask, nowadays it's very difficult to trust anyone easily, and trust issues are very common. So sometimes it's very difficult to share our feelings and emotions to anyone. As a student, I live far from home, and sometimes I feel alone to share my feelings. So, what steps should I take to keep myself mentally healthy every time? I think it is a very important question, and I'm going to deal with it in. I'll take 5 minutes to really respond. It's a very interesting question. देखिए, मैंने अभी चर्चा की थी साइकोलॉजिकल वर्च्यूज की,
साइकोलॉजिकल वर्च्यूज वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें हमारे अंतर मन को इवॉल्व करते हैं, उसका फैलाव होता है, और उनकी कुछ विशेषणों में ट्रस्ट एंड फेथ आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम ये बात करते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट पीपल, तो शायद हम ये कहना चाहते हैं कि लोग ऐसे नहीं हैं जिन पर विश्वास किया जा सके, ये एक समझ है। मगर अगर आप ये कहेंगे कि मुझ में किसी पर विश्वास करने की क्षमता की कमी है, तो मामला अलग हो जाएगा। If you say that you have lesser capacity to trust people, then this is specific problem of spiritual understanding. One may agree that you may not find a person who is befitting character to be trusted. That's a different issue. But whether you know that if you want, you can develop a trustworthy relationship or not. If you have deficiency of developing trustworthy relationship, then I think it needs a correction. And for doing a correction, you must introspect that why do I have lesser capacity to trust people? क्या कारण है? अगर आप लोगों पर विश्वास करेंगे, जैसे कि आप पेड़ों पर विश्वास करते हैं, आप रास्ते पर विश्वास करते हैं, आपको मालूम है ये सड़क है और ये जाती है आगे, आपको विश्वास है कि सड़क है, इसमें गड्ढे होंगे नहीं होंगे, वो एक अलग बात है। प्रकृति की चीजें हैं, उस पर आप विश्वास करते हैं, सूरज पर विश्वास करते हैं, चांद सितारों पर विश्वास करते हैं, तो मनुष्य पर विश्वास ना करने का कारण क्या हो सकता है? कारण ये होता है कि आप भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देते हैं। You start giving a reaction which is emotion laden, which is charged with emotion. Before somebody says anything, you have already developed a sense of expectation, and when that expectation is not met with, you have rejected the person. So this is the psyche behind trust and faith in our mind. Exactly same thing happens when you say, do I trust God? Though there are people who trust God, there are some people who trust very little. There are others who say, no, I don't trust God. Virtually, it doesn't matter for God whether you trust Him or you don't trust Him. Right. It matters to you whether what I am interested is to know what is your capacity to develop a trustworthy relationship. And believe me, if you lack in these characteristics, then your psychological work is very, very poor. Then your ability to perform and ability to remain happy, contented, satisfied becomes very poor. Your total resilience will be down, down, and down. The best thing you can do is to play with the challenge. Take risk, trust people, face it. एक दो मिसहैप, आपने किसी से कुछ कहा, उसने कहीं जाके कुछ कह दिया, कोई बात नहीं. You will know whom to tell, whom not to. But you will condition yourself to start developing relationship. Otherwise, आपको अपनी एक बीमारी के लिए 10 डॉक्टरों से मिलना पड़ेगा कि कौन सही कह रहा है भाई, किसकी डायग्नोसिस सही है, किसकी डायग्नोसिस गलत है, जो खाना मुझे दिया गया है वो सही है कि गलत है. दोस्तों क्या आप जाएंगे, आप खाना पीना बंद कर देंगे अगर ट्रस्ट इशू रहेगा तो. यू मस्ट रिजॉल्व इट. और अगर मेरी इन बातों से के बाद भी आपके मन में सवाल रहता है तो मैं आपको कुछ लिटरेचर भेज सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि इसमें आगे कैसे जाना है, हाउ टू रियली प्रोसीड फर्दर, बिकॉज दैट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन. Yes. Okay. Good question. Yes. Anyone else?
So I hope all the queries are resolved. Okay. Thank you, sir. And thank you all the participants. Gratitude arises from a heart bursting with the thought of thanksgiving and gratifies both the receiver and the giver. Now, I call upon Dr. C.M. Pandey, Director, Academic and Research, Divine Institute of Nursing and Paramedical Sciences, for delivering the vote of thanks. Thank you, Akanksha. It's a great pleasure to be here among our colleagues, our students, and our audience here in my campus. And it was a great pleasure enjoying the discussion with Professor Srivastava and getting online my other colleagues like Dr. Shivain. I think we met quite a long time. So it's my privilege and also my profound duty to thank all of you for participating in this seminar, in this webinar. And the whole credit goes to our colleagues from Montreal and Dr. Srivastav and Dr. Shivain Dwivedi, who had all the arrangements and wanted to convey this message to my students. And that was a perhaps great experience for me. Also, I learned a lot of new things. So thank you very much for delivering this webinar to this institute for our teachers, our students, and our other faculty members. The problem in this country for mental health is really enormous, as stated by Professor Amresh Srivastav. But a lot of things are to be done. This is a very first beginning, and I promise that we will be bringing this kind of environment and this kind of webinar in future for further discussion and more severe problems and more deeper inside of this issue. And I wish that all my students are mentally healthy. They can take up any challenge. There is no problem that you escape from your life, you escape from your challenges, and we will be with you for guiding you, for helping you, for supporting you with the help of experts and international audience and international experts from this particular field. And I also express my sincere thanks to our organization, our chairman, Professor A.K. Srivastav, who is not presently here and has to go somewhere for outside the hospital, Dr. Pankaj, who was here, our medical superintendent, Colonel Vikas, our principal, Professor Senbagam, our vice principal, Professor Sania, my teachers, my students, and all those arrangements which were made by Anuj for several hours working and making this arrangement. So thank you everyone. And last but not the least, I thank my colleague Hemant Dikshit and Professor D.D. Mishra also. We have been very instrumental to bring this program to this region. And I tell you, we had been meeting the different government authorities and talking to them while they were visiting in this particular state. And that effort has come through. And now the program has started and you people are benefiting. So with these words, I thank all of you and I thank particularly the presenters of this webinar from Montreal and wish that we will be meeting again and again. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you so much. So with the permission of the audience and the speakers, I declare this program as closed.